Assalamualaikum, my name is Noor Khalid. मैं इंग्लिश डिपार्टमेंट से हूँ और आज मैं GCU बुक क्लब की तरफ से द मास्टर एंड मार्गरीटा प्रेजेंट कर रही हूँ. I'm going to talk about this book which was written by Mikhail Bulgakov. Mikhail Bulgakov USSR के टाइम पे एक राइटर थे. He was an author, playwright, short story writer. और he wrote this book in 1930s. 10 साल उन्होंने इस पे काम किया और by the time he was done with it, वो blind थे, partially paralyzed थे, and of course because he was working under an oppressive regime, he was very burnt out. What is interesting to note about the publication history of this book is that Mikhail Bulgakov के lifetime में ये publish नहीं हुई. Because of course जब Mikhail Bulgakov लिख रहे थे तो स्टालिन regime उसकी हाइट पे थी और जो हमारे पास राइटर्स थे, आर्टिस्ट्स थे, वो they were subjected to execution, imprisonment and exile. Mikhail Bulgakov को even though Stalin की kind of favor, like he had his favor, जिसकी वजह से उससे कभी exile में नहीं जाना पड़ा, कभी वो execute नहीं हुआ, but still वो काफ़ी tormented था इस बात की वजह से because he wasn't able to produce the work that he wanted to produce. इसी वजह से उसने स्टालिन को एक लेटर भी लिखा था कि प्लीज़ मुझे किसी और मुल्क में जाने दें ताकि मैं काम कर सकूं, but his appeal was of course rejected. At any rate, मास्टर एंड मार्गरीटा जो है ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स बुक है एंड इससे इतने आराम से अंडरस्टैंड नहीं किया जा सकता, एटलीस्ट ये मेरा ओपिनियन है, अगर आप इसको इसके हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में ना रखें. और बिकॉज मैंने टेड की एक वीडियो है इस पे भी, वो भी आप देख सकते हैं, जिसमें उन्होंने इसे काफ़ी अच्छा एक्सप्लेन किया है. उससे मैं टेम्प्ट हुई कि हाँ मैं भी ये किताब पढ़ना चाहती हूँ. और वो ऑफ कोर्स लाइक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड उसमें उन्होंने बताया हुआ है. बुल्गाकोव जो है वो जब मास्टर और मार्गरीटा लिख रहे थे तो फिर उन्होंने एक डुअल पर्सपेक्टिव अडॉप्ट किया है, डुअल सेटिंग अडॉप्ट की है, जिसमें एक तो एट द सेम टाइम ये प्रेजेंट लाइक उस टाइम का मॉस्को एक सेटिंग है और दूसरा फर्स्ट सेंचुरी जेरूसलम है, जिसमें जीसस या यशवा ऑफ नज़रेथ जो है ही इज़ बीइंग सेंटेंस्ड टू डेथ. इससे पहले मैं प्लॉट की बात करूँ, आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट द कैरेक्टर्स. सबसे पहले यू हैव द devil himself, that is Poland. He's disguised as this professor of history, as a professor of dark magic, and he is a foreigner, जिसकी वजह से जब वो सीन पे आता है तो he is also thought of as a spy. इसके अलावा हमारे पास दो टाइटल कैरेक्टर्स हैं, the master which is an unnamed author, उसका नाम throughout mention नहीं है, throughout the story he's just referred to as the master. And we also have Margarita, which is interpreted as the real protagonist of the story, और Margarita उसकी mistress होती है मास्टर की. Then you have बाकी, I think इन तीनों के अलावा मैं बाकी सबको almost secondary characters ही कहूँगी. Secondary characters ही होंगी क्योंकि they appear and then something terrible happens to them which is almost comic. तो ये एक tragedy और comedy का भी juxtaposition इसमें नजर आती है. So you have Beryl's and Ivan जिनसे story start होती है. Ivan is important वैसे. Ivan is a poet and he is the person who is introduced to the master. उसके through हम the master से introduce होता है. इसके अलावा you have an entourage of the devil of Poland. उसके साथ उसके different demons आए होते हैं. You have a cat named 𝑚𝒉𝒆, you have Ella which is a witch, you have 𝑘ℏ इस तरह से, and then you have all these secondary characters जो literary elite और Russian bureaucrats हैं, और I think उनके बस name ही word like they're not relevant to the overall larger plot of the story. अगर हम इसके
जॉनर की बात करें तो फिर ये एक तो हिस्टोरिकल फिक्शन भी है, बिकॉज ये जीसस की एग्जीक्यूशन के बारे में भी बात कर रहा है। इवन लाइक उसमें प्राइमरीली आपके पास जीसस प्रोटैगनिस्ट नहीं है उस सेटिंग में, बल्कि पोंटियस पायलट है who is the person who sentenced Jesus to death। और दूसरी तरफ हमारे पास उसका एलिमेंट भी है, political satire है, because again Mikhail Bulgakov was writing under an oppressive regime जिधर censorship laws बहुत prevalent थे, जैसा कि आप Animal Farm और especially 1984 जॉर्ज ऑरवेल के 1984 वाले उसमें के नॉवल में देखते हैं, जिसमें उसने बेसिकली स्टालिन, रशिया और नाजी जर्मनी के जो वर्स्ट ट्रेट्स थे उन्हें अमलगमेट करके एक डिस्टोपिया दिया है। मास्टर एंड मार्गरीटा जब ओपन होती है, अब अगर इसके प्लॉट पे बात करें, इट ओपन्स टू कॉन्वर्सेशन बिटवीन एन एडिटर एंड ए पोएट। हमारे पास ये पेट्रियार्क स्पॉन्ड एक गार्डन है इन मॉस्को सॉरी, और उधर ये बात कर रहे हैं एंड देयर बेसिकली टॉकिंग अबाउट जीसस। और उसमें अब बात ये नहीं है कि यदि उसमें जो एडिटर होता है वो हिज नेम इज़ बेरलिज़ॉफ जो है वो ये बोलता है, एंड इट्स एक्चुअली अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। वो कहते हैं डिबेट ये नहीं है कि जीसस अच्छा था या बुरा था, डिबेट ये है कि जीसस एग्जिस्ट ही नहीं करता था। उसने लाइक कंप्लीटली आके डिनाई कर दिया बात दैट जीसस वाज अ रियल पर्सन हु इन्फ्लुएंस्ड अ लॉट ऑफ पीपल, एंड यू नो दैट इज हाउ वन ऑफ द बिगेस्ट रिलीजन्स इवॉल्व्ड। लेकिन बिकॉज ये स्टालिन रिजीम में लिखा हुआ है, जो मैं आगे थीम्स पे भी इसके आगे बात करी थी, तो एक बहुत ही एग्रेसिव एथियस्ट प्रोपेगेंडा था जिसमें वो कम्प्लीटली डिनाई कर रहे थे that these religious figures were actually mythical beings, that they never really existed। तो बेसिकली वो ये बात कर रहा होता है अपने दोस्त से, I think उसे दोस्त कहा जा सकता है, कि the devil himself, disguised as a professor named Wolan, happens upon their conversation और वो उनकी बात सुनने लगता है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि ऑफ कोर्स अगर आप जीसस की एग्जिस्टेंस को डिनाई कर रहे हैं, आप इसका मतलब है आप गॉड की एग्जिस्टेंस को भी डिनाई कर रहे हैं, और अल्टीमेटली अगर आप गॉड को डिनाई कर रहे हैं तो आप डेविल को भी डिनाई कर रहे हैं। और यू नो डेविल हिमसेल्फ इज देयर, सैटन हिमसेल्फ इज ऑन द सीन, और वो उनकी बात को बहुत ही गौर से सुना, और वो कहते हैं कि मैं तुम लोग को प्रूव करूंगा कि जीसस वॉज अ रियल पर्सन। और ये सारा चैप्टर 1 बेसिकली यही कॉन्वर्सेशन है। इट्स वेरी सबवर्सिव इन इट्स प्लॉट, और होता यह है कि वो जब कहता है पोलैंड दैट इज सैटन कि लाइक जीसस रियली डिड एग्जिस्ट, जिसकी वजह से हमारे फिर जो सेटिंग है वो शिफ्ट हो जाती है सेकंड नैरेटिव पे, जो पोंटियस पायलट और जीसस पे फोकस्ड है और उनकी बात पे फोकस्ड है, व्हेन पोंटियस पायलट इज पासिंग हिज सेंटेंस। अब इसमें लाइक नैरेटिव स्ट्रक्चर की इंटरेस्टिंग बात यह है कि लाइक उन दो लोगों को लग रहा होता है कि दे आर एक्चुअली ड्रीमिंग, बट क्योंकि वोलैंड इज अ मैजिकल बीइंग, ही इज सैटन, ही हैज मैजिकल पावर्स, तो वो ना एक्चुअली उस टाइम पे ले जाता है। तो फिर ये काइंड ऑफ डुअल पर्सपेक्टिव है और इंटरप्ले है ऑफ व्हाट इज फिक्शन एंड व्हाट इज रियलिटी, व्हाट एक्चुअली हैपेंड, व्हिच इज आल्सो वन ऑफ द थीम्स जिसके बारे में मैं बाद में बात करूंगी। पोंटियस पायलट इज ऑब्वियसली टॉर्मेंटेड बिकॉज वो जीसस को नहीं एग्जीक्यूट करना चाहता, बट बिकॉज उसके हायर अप्स ने ऑलरेडी कह दिया है कि इस बंदे को ही एग्जीक्यूट करना है, बिकॉज what Jesus was doing, he was preaching this message of love
लेकिन हायर अथॉरिटीज़ उसे इस तरह से इंटरप्रेट कर रही थी कि ये ट्रीज़न है, जिसकी वजह से हमारे पास जुडिया का जो प्रोक्यूरेटर है, दैट इज़ पोंटियस पायलट, वो उन्हें उसे सेंटेंस पास करना पड़ रहा है। ये नैरेटिव एंड हो जाता है जब चैप्टर 3 दोबारा स्टार्ट होता है, तो हमारे पास पर्सपेक्टिव वापस शिफ्ट हो जाता है ऑन onto Berlioz and Ivan. Ivan is the name of the poet. तो अब again Berlioz फिर भी डिनाई करता है even though he has seen it, but उसे लग रहा है ये पता नहीं मेरे साथ क्या कुछ हुआ है, मैं तो ड्रीम कर रहा था and this didn't really happen. और of course वॉलन को इस पर थोड़ा गुस्सा आ जाता है, और फर्स्ट चैप्टर में ना he kind of eludes, अब ये हमें ये सेकेंड रीडिंग पे ये चीज़ पता चलती है। फर्स्ट रीडिंग में आपको ये चीज़ रियलाइज नहीं होगी, बट सेकेंड रीडिंग में वो पता चलता है कि वोलेंट ने एक्चुअली बेरलॉज की डेथ उसी वक्त उसे मिलते साथ ही प्रोफेसाइज कर दिया है, एंड दैट इज़ वाई बेरलॉज डाइज इन चैप्टर 3। अब आइवन जो है ही सीज ऑल ऑफ दिस इन अनफोल्ड इन फ्रंट ऑफ हिम, और वो जब लोगों को बताने की कोशिश करते तो उसे कोई बिलीव नहीं करता कि ये कोई फॉरेनर बंदा आया था और उसने जी ये सारा प्रिडिक्ट कर दिया और बेरलॉज मर गया, और एवरीवन इज काइंड ऑफ लाइक बहुत क्योटिक सीन हो जाता है, बिकॉज लाइक बेरलॉज का एक्चुअली सर कटा हुआ पड़ा होता है उधर, एंड इट्स वेरी एब्सर्ड इन दैट सेंस। लेकिन आइवन जो है बिकॉज उसकी कोई बात पे बिलीव नहीं कर रहा होता और वो ये सारा कुछ अपने सामने देख रहा होता है, तो ही एंड्स अप एट अ साइकाइट्रिक हॉस्पिटल, जो ऑलमोस्ट सारे सेकेंडरी कैरेक्टर्स के साथ होता है। व्हाट वोलन डज इज दैट ही लाइक चैप्टर बाय चैप्टर, एटलीस्ट जो बुक का पार्ट 1 है वो इसी से कंसर्न है कि वोलन जिसके पास भी जा रहा है ना आपके रशिया के लिटरेरी एलीट में से, he says something to them, he does something to them, and they wind up at the psychiatric hospital, which is why जब after 5 days Volin exits Moscow, तो psychiatric hospital भरा पड़ा होता है with literary elite, with Russian bureaucrats who have gone insane. I'm laughing because ये like इतना इसमें डार्क ह्यूमर है जो मैं अगर इस तरह से बोलूँगी तो you probably won't find it funny, but once you visit the book you can actually see the absurd appeal of the overall plot. How morally bankrupt a society has to be कि Volant, like the devil himself, has to come to stage और आपकी जो पेटी सेल्फ इंटरेस्ट हैं, जो आपके सिनिस्टिज्म है, वो एक्सपोज करें आपके सामने, बिकॉज व्हाट वोलन डज इज एसेंशियली वो बुक 1 में सारा कुछ एक अपने लिए स्टेज सेटअप करता है टू पुट ऑन अ मैजिक शो, और उस मैजिक शो में व्हाट ही डज इज ही कट्स ऑफ पीपल्स हेड्स, वो लोगों को पैसों की बारिश हो रही होती है, और देन देयर आर पीपल मोस्टली वुमेन हु trade their clothes for better clothes, and by the end of the spectacle, by the time Volant leaves Moscow, वो सब कुछ गायब हो जाता है, पैसा गायब हो जाता है, कपड़ा गायब हो जाता है, and it creates this chaotic environment कि ये क्या हुआ है हमारे साथ, और mass hysteria में सब आ जाते हैं, which is also why everyone ends up at a mental hospital, an asylum. लेकिन बुक 1 में ही हम मास्टर से भी इंट्रोड्यूस होते हैं थ्रू आइवन, और मास्टर बेसिकली रिवील ये करता है दैट ही हैज़ बीन वर्किंग ऑन अ नॉवल अबाउट पोंटियस पायलट, जिसकी वजह से ये एक और लेयर ऑफ नैरेटिव ऐड होती है कि जो पोंटियस पायलट की स्टोरी साथ साथ हमें मिल रही है ना, इट्स एक्चुअली द नॉवल दैट द मास्टर रोट। तो एक ये लाइक मेटा नैरेटिव का भी स्ट्रक्चर आ जाता है इसमें। जब हम बुक के सेकंड पार्ट पे आते हैं तो वी आर एक्चुअली इंट्रोड्यूस टू मार्गरीटा, जो द मास्टर की मिस्ट्रेस है, और इधर काफ़ी ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट इन प्ले, बिकॉज आई वुड लाइक ये काफ़ी क्रिटिकल डिबेट है, एंड इट्स ऑल्सो नॉट फार फेच्ड कि मिखाइल बुल्गाकोव ने
मास्टर मार्गरीटा के थ्रू अपनी और अपनी वाइफ की स्टोरी इमोर्टलाइज किया है. The master is Mikhail and Margarita is his wife. Like he is an allegory for his wife because, as I already said, कि बुल्गाकोव की की लाइफ में ये बुक पब्लिश नहीं हुई थी because he died in 1940. और जो फर्स्ट मैन्यूस्क्रिप्ट थी it was published in 1960s और वो भी सेंसर्ड थी. और ओरिजिनल मैन्यूस्क्रिप्ट जो थी वो ऑल अंडरग्राउंड लिटरेरी सर्कल्स में हो रही थी. लाइक इट वाज बीइंग सर्कुलेटेड. लेकिन जो ओरिजिनल मैन्यूस्क्रिप्ट थी, लाइक कंप्लीट अनएब्रिज्ड मैन्यूस्क्रिप्ट जो है वो आपको 1973 में जाके पब्लिश होती है, which is almost 30 years after Bulgakov's death. जो एक जब Margarita आती है तो she kind of makes this deal with Poland where she has to help him out for a night, जिसकी वजह से he's going to grant her one wish, any wish. Above, of course, like on the surface, अगर हम देखें तो deal, because we are religious people, so we're like deal with the devil is something that is not thought of as good. Yani it's frowned upon. It's not. It's like morally ambiguous. भी नहीं कहेंगे. It's straight out evil. लेकिन इस book में it is a play on that assumption कि like making a deal with the devil is something that is inherently bad. Or because we are introduced to Margarita as this embodiment of love and devotion, तो हमें उसके पार्ट पे भी कुछ गलत नहीं महसूस होता कि ये कुछ गलत कर रही है. और वो भी अब deal basically है that she has to pretend to be his wife for the night that he is hosting a ball, or if she succeeds in doing that, so she can be granted whatever wish she wants. Like think of the worst sinners that have been throughout history, और आपको वो एक रूम में आप उनके साथ बंद हो गए हो, and you have the devil on your arm, and that is Margarita's trial. I think the crux of this novel is that no matter how cynical, how morally depraved a society becomes, how morally bankrupt a system becomes, there are still instances of love that will and should prevail. और जो हमें Margarita और Master की story से पता चलता है, and again there are the title characters, तो फिर authorial intent भी यही होगी that Bulgakov supports this idea and he is an optimist at heart, one might argue. और vividly text भी इसी चीज़ को support करता है, where Bulgakov writes about how love does conquer all. I feel like I would recommend this book to anyone who is dissatisfied with the atrocities that are happening, that have been happening for a very long time, or just अगर hope थोड़ी बहुत चाहिए तो I think this is a good testament that everything is going to be okay at the end. Even though like it's a very convoluted structure and it's very hard to get through the book, लेकिन एक दफ़ा आप book 2 पे आ जाओगे तो there is a very vivid message of hope and love and how everything's going to be okay at the end. Anyways, I hope this video session was very helpful, and I hope you would pick up this book even if you don't want to read it to the end, and thank you.